Good afternoon, everyone. Let's begin with the structuralism, the next anthropological theory. And as I have been keep saying this, that anthropological theories are an attempt to make sense of culture, to study them and to look at how they evolve and progress through time. So, this study of cultural evolution is similar to the study of biological evolution, जिसके लिए अलग लाइन है, वैसे ही सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या जो कल्चरल एवोल्यूशन की जो स्टडी है वो अलग है. But both of them try to follow the same scientific principles, a scientific study. And जब scientific study होती है तो then the study is always empirical, the patterns are looked for. But ये है कि biological evolution में those patterns are quite simpler. And जब culture की बात करते हैं तो those patterns are nowhere to be seen, or even if they are, then there are many ifs and buts, many exceptions. So structuralism is one such attempt to make sense of the culture by looking for the patterns. So यहाँ पे जो patterns जो है, it is about the underlying structure of human society and human mind. So in one way or another, both are related because society is made up of mind. So you can say society is the collective organization of individuals. So जो societal perspective होगा या जो societal soul होगी, it is the the cumulative soul of the individual minds. So ये यही पैटर्न जो है स्ट्रक्चर का कि if individuals have those common structures, if individuals follow those common structures just because they are human, then society जो है at broader level will also project those analysis or those structure at societal level. यही main purpose है structuralism का. In other words, like Strauss, Claude Levi-Strauss, he said कि जो भी cultures हैं the world over, all of them, they follow certain fundamental principles, fundamental structures. And now he called them structures. Well, you can give them any other name based on your perception of the idea or your understanding. So structure को आप organization भी बोल सकते हैं, structure को आप patterns भी बोल सकते हैं, structure को आप mental faculties भी बोल सकते हैं. Overall जो आइडिया है इट्स दिस वन. जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब भी आप पीक्यूआई एनालिसिस पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं देन यू ट्राई टू लुक फॉर पैटर्न्स. सिमिलरली कोई भी बिग डेटा जो है, इफ बिग डेटा इज एनालाइज, इवन इफ जैसे आप में से अगर कोई जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम कर रहा है या किसी कॉर्पोरेट सर्विस में काम कर रहा है जिसमें डेटा एनालिसिस जो है वो होता है, देन यू नो कि आप जो भी बिग डेटा एनालाइज करता है आप सबसे पहले यू लुक फॉर द पैटर्न्स, कॉमन पैटर्न्स. देन व्हेन यू ड्रॉ दोज पैटर्न्स आउट, सो दोज मेगा पैटर्न्स दे एक्ट एज मैग्नेट. मेगा पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े ब्रॉडर पैटर्न्स हैं. सो उन मेगा पैटर्न्स में जो ब्रॉडर पैटर्न्स हैं और उनके एसोसिएटेड जितने भी डेटा हैं वो सब अलग अलग कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. देन यू गो थ्रू द माइक्रो एनालिसिस कि अब इनमें जो ब्रॉडर एनालिसिस है या ब्रॉडर पैटर्न्स हैं उनको और जो ना यू लेट्स सी देम आउट और फाइंड फॉर और जो माइक्रो पैटर्न्स हैं उनमें. सो इस तरह से जो बाल की खाल निकालते हैं वो एनालिसिस हो रहा है. सो यहीं पे स्ट्रक्चरलिज्म का भी सेम चीज है. वापस पैटर्न पे आते हैं दैट ह्यूमन माइंड इट holds certain fundamental patterns or some fundamental structures. Now, one such fundamental pattern जो आपको बार बार दिखेगा, it is the binary opposition. Now, what binary opposition is? So you may not take it you may not give it that quite a stand, that quite a place, or you may consider it as a part of take for granted things. कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, हम उनके बारे में
लिखते हैं, पढ़ते हैं, we live into them, we live with them, we live by them. So those are binary opposition, जैसे लाइफ एंड डेथ. नाउ ये जो चीज है, अब ये हर एक के जबान पे है और हर कोई इसको समझता है. वैसे ही लाइट एंड डार्क, अब ये भी एक बाइनरी ऑपोजिशन है. देन हॉट एंड कोल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट. सो इस तरह के बहुत सारे ऑपोजिशंस हैं. नाउ ये ऑपोजिशन जो है, फर्स्ट हम वी द होमोसेपियंस और जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, दे गेट देयर अंडरस्टैंडिंग, दे गेट देयर नॉलेज by taking cues from their surrounding, taking cues from nature. So philosophically या spiritually you can say कि we learn from nature. Nature is the teacher. So यही चीज जो है लाइफ एंड डेथ जो है, ये हमने तो क्रिएट की नहीं है ना. हम जब पैदा हुए तब ये चीज हमें समझ में आने लगी कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. वैसे ही हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं, वो भी हमने नहीं क्रिएट की है. और उसी तरह से डे एंड नाइट की बात करते हैं तो वो भी हमने क्रिएट नहीं किया. So we have been seeing those binary oppositions everywhere in our life. So उन्हीं binary opposition के basis पे ही we created our life. We align our mental knowledge, our framework of mental knowledge to those binary framework. Because हमें ये पता चला है कि this is a pattern that works in nature. कि light is followed by darkness and darkness is followed by light. वैसे ही day will be followed by night, night will be followed by day. So इस तरह से जो पैटर्न्स जो हैं, जितने भी साइक्लिकल पैटर्न्स जो हैं, we have seen them. अब हमें भी पता है कि जो है सर्दियों के बाद गर्मी आती है, फिर गर्मियों के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद सर्दी आती है. सो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो हमने नेचर से सीखे हैं और उसी के हिसाब से हमने हमारा जो मेंटल फ्रेमवर्क जो है वो अलाइन किया है. बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी चॉइस. अगर हम ये कहें कि बारिश के टाइम पे हम सीजन जो है वो फॉलो ही नहीं करें और ये कहें कि जब मॉनसून आ जाएगा तब हम जो है ओपन रूफ थिएटर करेंगे. सो अब ओपन रूफ थिएटर मॉनसून के टाइम पे, सो इट्स अ डिजास्टर. आपको पता है कि कभी बारिश हो सकती है ना. जितने भी इक्विपमेंट जो है वो सब गीले हो सकते हैं, कोई जो ऑडियंस है वो भी नहीं आएगा. वैसे ही आप कहें कि उसी ओपन रूफ में विंटर्स में आप रेन डांस ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सो वो भी आपको पता है वो भी एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है. सो सिमिलरली ये हम जो जो क्यूज की बात करें या बाइनरी ऑपोजिशन की बात करें, विच इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म थ्रू आउट दिस लेक्चर. तो उसका आइडिया पर्टिकुलर यही है कि ये पैटर्न जो है विच इज इंटीग्रेटेड इन आवर साइके, ये हमने नेचर से लिया है. और यही पैटर्न, यही मेंटल फैकल्टी जो है, ये हर एक कल्चर के अंदर है. ये हर एक कल्चर का अपना स्ट्रक्चर है. सो सारे के सारे कल्चर जो है वो सब ये सब देखते हैं, लाइफ एंड डेथ, लाइट एंड डार्कनेस, फिर डे एंड नाइट, सब ये सब देख रहे हैं. तो उनकी जो जो कल्चरल इवोल्यूशन है या जो कल्चरल अपलिफ्टमेंट या कल्चरल प्रोग्रेस है, वो उन्हीं फ्रेमवर्क को फॉलो करेगी, उसी पैटर्न को फॉलो करेगी. Now let's have a look at the intellectual foundation of structuralism. So structuralism, has come from taking rich knowledge from linguistics, sociology and philosophy. And the basic idea here, जिस तरह से जितने भी anthropological theory है सबका यही है, to explain the hidden logic behind cultural practices. So in other way, it is trying to make sense of any particular culture. So जो बाकी एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी करती है वो भी इसका काम है. नाउ द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में द फर्स्ट जो क्यू है, इट इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक ऑफ फर्डिनेंड ड सोसूर, एक स्विस लिंग्विस्ट है. सो ही सेड कि जो भी लैंग्वेज जो है, इट इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट इट इज अ स्ट्रक्चर. नाउ यह एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, a system of pattern, an organized system of pattern. So हर एक वर्ड के अंदर दो चीजें होती है. फर्स्ट, signifier. So signifier is the basic structure of
any word spoken or written. So this structure, it is about its presentation, कि वो कैसे बोला जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है, how it is spoken or written. So mostly it is the grammatical part, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला है. So first उसका grammatical part, how it is written and spoken, and then the second part that it conveys is the idea or concept that it refers to. So और सिंपल कहें, सो कोई भी एक वर्ड ले लिया, सो उस वर्ड का एक तो उसका खुद का स्ट्रक्चर होगा, द बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ इट इज रिटन, एंड देन व्हाट इट रेफर्स टू, द अंडरलाइंग आइडिया. सो ये आइडिया था सोसुआ का. नाउ देयर कम्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आगे चल के लेवी स्ट्रॉस ने भी यूज किया. सो सोसुर ने कहा कि जो वर्ड्स जितने भी हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड, all those words. Actually the words work with the difference principle. So difference principle means, let's say यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, बैट, रैट, कैट, मैट. सो यहाँ पे सोसुआ said कि the word bat, so first thing, एक तो इसका जो स्ट्रक्चरल या सिंटैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या सिंटैक्स कह सकते हैं कि किस तरह से लिखा या बोला जा रहा है, एंड देन द आइडिया, क्या रेफर कर रहा है. ठीक है, सो BAT इज हाउ इट इज रिटन, दैट्स द सिंटैक्स, एंड देन इट रेफर्स टू अ फ्लाइंग मैमल. ओके, नाउ उसके बाद एक और चीज आती है कि दिस पर्टिकुलर वर्ड, इट इज लर्नड, मेमोराइज्ड एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन यूजिंग द डिफरेंस प्रिंसिपल, कि ये जो वर्ड है ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड से किस तरह डिफरेंट है. सो हाउ बैट इज डिफरेंट फ्रॉम कैट, मैट, रैट, उस तरह से इसके मीनिंग जो है वो कन्वे होता है. सो दिस इज द डिफरेंस प्रिंसिपल. सो यही जो है आइडिया, इट वॉज यूज बाय लेवी स्ट्रॉस, कि जितने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनमें उनकी जो पोजीशन है और the actual functioning, the action of all those cultural practices, they work in the system of differences, जो ultimately which refers to the binary oppositions. So let me explain it very simply. So जैसे किसी भी कल्चर की कोई एक कल्चर प्रैक्टिस ले ली, हमारे कल्चर की जैसे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है. नाउ दैट मैरिज इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन सेरेमनी. उसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो सेरेमनीज हैं, माइक्रो सेरेमनी या मिनी सेरेमनीज हैं. सो अब जो मिनी सेरेमनीज हैं, जैसे मैं अपने यहाँ की बात बताऊं तो सबसे पहले जो उसमें विनायक पूजन होता है, फिर उसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम होता है, फिर संगीत का होता है, फिर उसके बाद फेरे का, बारात का, फिर उसके बाद विदाई का, फिर उसके बाद 4-5 सेरेमनीज और होती है. सो यहाँ पे ये जो जितनी भी सेरेमनीज हैं, दे आर नॉट स्टैंड अलोन. उनमें से हर एक सेरेमनी जो है, इट वर्क्स इन अ सिमिलर बाइनरी ऑपोजिशन सिस्टम. सो लेट्स से यहाँ से विनायक एंड विदाई, अब ये दोनों सेरेमनीज जो है, they are at the two poles of that binary opposition. So this is the beginning, विनायक से शुरू होता है एंड विदाई पे खत्म होता है. So again both of them they signify the poles, कि जिस तरह से लाइफ शुरू होती है, डेथ पे खत्म होती है. डे जो है वो डॉन पे शुरू होता है एंड डस्क पे खत्म होता है. So इसी तरह से ये भी ऑपोजिशंस है. और फिर उनमें जो मिनी वेरिएशंस है कि ये सेरेमनी खत्म होगी तो ये शुरू होगी, और उनमें भी फिर अपने अपने डिफरेंसेस हैं. सो ये है सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस दैट वाज यूज्ड बाय लेवी स्ट्रॉस. देन द सेकंड कांसेप्ट, एमिल डर्कहाइम्स कांसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल फैक्ट. नाउ इफ यू कैन रिकॉल कि जब इससे पहले फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये दोनों जो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज पढ़ी, देन वी टॉक अबाउट एमिल डर्कहाइम, बिकॉज
Emil Durkheim was the propounder who first mentioned organic analogy of society, organic analogy of culture, even in an implicit way. So ऑर्गेनिक एनालॉजी अगर आप रिकॉल कर पाए फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, सो दोनों ही जो थियरी मैलिनोव्स्की की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, दोनों ने ये कहा सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और उसी ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे लिम्स हैं, लिम्स एंड ऑर्गन्स हैं. नाउ all such organs, they perform different functions. और यही आइडिया है दोनों फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, कि दीज ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस, और फिर वही फंक्शन जो है वो उस इंडिविजुअल की और सोसाइटी दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करता है. सो सिमिलरली Durkheim ने भी यही प्रिंसिपल दिया, that society is not just a group of individuals, it's not just a counting of head, but it has its own reality. It is alive. Society is alive. It is an organism, and this organism has different its own way of life. So if it is alive and it has its own reality, so you just have to look at society at a broader, at a bigger level, कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है. सो अब उसी बड़े ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी होंगे, एक सोल होगी, कुछ डिजायर्स होगी, है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे. तो यही आइडिया जो है दरखाइम का है, और यही आइडिया फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में यूज किया है. सो ही सेड कि सोसाइटी इज मोर देन जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, that it has a certain reality of its own, it is alive, and it has some collective representations. So those collective representations जो मैंने अभी आपको कहा, that you have to assume that society is a bigger organism. So उसी वो bigger organism जो है वो it has certain values and principles and restrictions and prohibitions and customs. वो जो है that is the cumulative कलेक्टिव रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, या प्रोजेक्शन कह सकते हैं, या फिर यही वर्ड सही है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कि जो सोसाइटी का जो अल्टीमेटली जो फाइनल उसकी वैल्यू होगी एट अ बिगर लेवल, दैट विल बी द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. फिर ये जो कलेक्टिव पैटर्न्स हैं, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या कलेक्टिव पैटर्न्स, जिस भी तरीके से देखें आप उसको, जो अभी बताया आपको कि सोसाइटी के भी वैल्यूज हैं, सोसाइटी के भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोहिबिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ओपिनियंस हैं एंड डिजायर्स हैं. वो जो कुछ भी है, कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ, लॉ, दीज आर सोशल फैक्ट्स. एंड देन ये सोशल फैक्ट जो है, आप इनको इस तरह से भी देख सकते हैं बहुत सिंपली, कि ये सोसाइटी का निचोड़ है, जो हिंदी में निचोड़ कहते हैं, द एक्सट्रैक्ट, द जिस्ट. सो ये कलेक्टिव जिस्ट जो है, इट इज ड्रॉन आउट, it is filtered, and then it is passed down through the generation. And the Durkheim जो है, he said कि these ideas or these social facts, these collective patterns are not just things to follow, rules to follow, but they are expression of deeper mental structure, the extract. So extract तभी आएगा when most of the opinions, customs, desires, aspirations, prohibitions are shared by people together. Now, the third foundation is the concept of total social fact by Marcel Mauss. So, he gave the idea of total social fact. So, total social fact का मतलब है कि कुछ जो cultural practices हैं, या any such cultural practice, it touch every other aspect of life simultaneously. सो जब कोई ऐसी प्रैक्टिस बहुत सारे एस्पेक्ट पे एक साथ टच करती है, so those cultural practices were called by called as total social fact by Marcel Mauss. So उसने एक एग्जाम्पल दिया in his famous work The Gift. So यहाँ पे गिफ्ट की बात हो रही है, और वही एग्जाम्पल जो है, now you will see the universal structure here, the common pattern जो structuralism प्रोजेक्ट कर रहा है, जो गिफ्ट गिविंग थिंग है. नाउ
अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग गिफ्ट क्यों देते हैं, और या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों करते हैं, या गिफ्ट की जो प्रथा है वो क्यों है। सो यहाँ पे गिफ्ट जो है, अकॉर्डिंग टू मार्शल पॉन्स, इज दैट टोटल सोशल फैक्ट दैट टच many aspects of life simultaneously. Total social fact. कैसे? कि गिफ्ट इज नो, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, नॉट जस्ट an economic transaction, nor it is just a well wish. So it has lot of meanings. So first, gift is like economic exchange. So ये होता है, इवन जैसे डावरी का जो है ना, आज के टाइम में तो डावरी जो है वो बहुत ही घटिया लेवल पे पहुंच गई है। बट जो डावरी जो है, ये ये शुरू हुई थी इस तरह से कि जो भी पैट्री लोकल सोसाइटी होती है, पैट्री लोकल, कि जब वाइफ जो वीमेन जो है, दे मूव टू द फैमिली, मूव इन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड। सो इसमें क्या होता है कि फादर्स वो अपनी बेटी के लिए वो कुछ प्रोवाइड करते हैं शुरू में, ताकि जब नई नई शादी होती है तो सन इन लॉ जो है वो हो सकता है वेल प्लेस नहीं है, और कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं शुरू में, एक साल एक दो साल जो है उनके बीच में रिसोर्सेज को लेकर कोई तकलीफ ना हो। सो फादर क्या करते हैं, वो अपनी बेटी के लिए कुछ देते हैं। और एक तरह से तो इसमें जो दूसरा है, जिसको हम बहुत बार कन्यादान भी बोलते हैं, सो इसमें आइडिया ये भी होता है फादर का कि जो जो रिसोर्सेज जो मैं अपने सन को देने वाला हूँ, अपनी बेटी को मैं नहीं दे पाया, तो उसके कॉम्पनसेशन में सो बेटी के लिए कुछ कर देते हैं। सो ये एक तरह से एक गिफ्ट गिविंग थिंग हुई थी, जो धीरे धीरे जो बिगड़ के इट बिकेम ग्रीडी, लोथसम एंड एक्सट्रैक्टिव। खैर, वापस गिफ्ट पे आते हैं। सो जब भी गिफ्ट होते हैं, सो स्पेशली जब हम कोई अपने किसी रिश्तेदार को देखते हैं, फ्रेंड को देखते हैं, हु आर नॉट वेल प्लेस या हु आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, सो हम उनकी हेल्प करने के लिए वी गिव देम गिफ्ट। एंड देन वो जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो फ्री में नहीं होते। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जब हमारा खराब टाइम आएगा, देन दे विल बी एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। सो यहाँ पे जो जो उतार चढ़ाव की बात आती है ना, द राइज एंड फॉल, जो ये देखते हैं, ये भी एक बाइनरी ऑपोजिशन है, एक कॉमन स्ट्रक्चर है हर एक सोसाइटी में। बिकॉज ये चीज जो है साइक्लिकल है, साइक्लिकल एंड सीजनल, और हर एक के साथ ही होती है। सो हर जो सोसाइटी है, हर कल्चर जो है, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है। फिर लीगल ऑब्लिगेशन। सो गिफ्ट जो सेकंड इसका एस्पेक्ट है कि जैसे डावरी वाला हो गया, सो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन को हम वो ले सकते हैं, मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, कि ये चीज जो है देनी पड़ेगी। फिर गिफ्ट के साथ ही दे आर सर्टेन मीनिंग्स, जैसे आपको कोई गिफ्ट दे रहा है बट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ गिफ्ट, सो इट कैन बी एन इंसल्ट। एंड फाइनली जो पर्पस होता है सोशल बॉन्ड का, दैट गिफ्ट की वजह से सोशल बॉन्ड्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे जो मैलिनोव्स्की की जो केस स्टडी है अमंग ट्रोबरी एंड आइलैंडर, सो जो उसमें कूलर रिंग सेरेमनी है, सो इट इज अबाउट गिफ्ट। और गिफ्ट का जो जो एग्जाम्पल है, ये मार्शल मॉस ने बहुत ही सटल बट इफेक्टिव एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ये हर एक सोसाइटी में ना गिफ्ट दिए जाते हैं, बट उनके साथ ही बहुत सारी चीजें होती है, उनसे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होता है। इवन अगर मॉडर्न टाइम्स में कहें, तो अगर आप अपने परिवार में जब किसी कोई शादी होती है, तो आप गिफ्ट उनको इसीलिए देते हैं कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में इसका आइडिया ये है कि सोशल बॉन्ड भी बढ़े, एंड गिफ्ट के अंदर आप उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड करें कि उनकी जो भी सेरेमनी है, चाहे वो शादी है, चाहे उनका बर्थडे है, या कोई भी अदर कोई भी कस्टम फेस्टिवल है, सो उसमें उनके ऊपर बोझ कम हो जाए। और यही जो है वो एक रिटर्न मैकेनिज्म है कि जब आपके साथ होगा तो वो आपका बोझ कम करेंगे। तो इससे क्या है, जो सोशल बॉन्ड्स जो है वो सॉलिड होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कल्चर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, बिकॉज कल्चर एक
पर्टिकुलर सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए, सोसाइटी को स्टेबलाइज रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गिफ्ट जो है वो है ना, इंडिविजुअल, पर्सनल, सोसाइटल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कितने सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको एक साथ टच कर रहा है। वैसे ही जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मिथ्स हैं, कस्टम्स हैं, ऑल ऑफ देम दे फॉलो द सेम थिंग, कि हर एक जो कस्टम है इट हैज मैनी सिंबल्स that are associated with it. Fair, let's move on to the synthesis made by Levi Strauss. So he came up with this conclusion that human mind works through structured oppositions. And these structured oppositions, these binary oppositions or these opposite patterns, जैसे भी आप इनको देखें, तो मैं इनको अगर simply opposite patterns कहूँ तो यही बात है. So these opposite patterns, they are universal across all cultures. And why they are universal? Because we, the Homo sapiens, we take cues from nature. So ultimately, हम अपने आप को किसी सोसाइटी में, किसी जोग्राफी में रेस्ट्रिक्ट क्यों करें? We are the Homo sapiens. We evolved out of Africa and then colonized the whole earth. और उसमें अल्टीमेटली जो हमारा स्टॉक जो है तो वही अफ्रीकन स्टॉक है, वही हमारी जो ओरिजिनल सोसाइटी है, द पेरेंटल सोसाइटी, और उसी से हम लोग जो है माइग्रेट होके हम अलग अलग सिविलाइजेशन में, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग डिवाइड हो गए। बट अल्टीमेटली हम लोग सब है तो एक ही। और अगर सब लोग है एक ही तरह के लोग हैं, तो कौन सी ज्योग्राफी पे है, कौन से हमारे लोकल कस्टम्स हैं, और कौन से बिलीफ, नॉलेज सिस्टम, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो इतना मैटर नहीं करता है। कुछ चीजें जो हैं वो ब्रॉडर लेवल पे यूनिवर्सल है। सो दीज ऑपोजिट पैटर्न्स, दीज स्ट्रक्चर्ड ऑपोजिशंस आर वन ऑफ देम। फिर एग्जांपल्स हैं इनके जो अब और भी आपको दिए, लाइफ, डेथ, रॉक, मेल, फीमेल, नेचर, कल्चर, सेल्फ, अदर। सो ये सब जो है ये नेचर टॉट बाइनरी ऑपोजिशंस है, नेचर टॉट बाइनरी ऑपोजिशंस। क्योंकि अभी हम जैसे हम इस पोजीशन में है दैट वी कैन क्रिएट न्यू लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, कोई भी चीज। सो अब अगर हम कोई जो नई लाइफ जो है वो अगर बनाते हैं, तब हमें आइडिया होगा कि हम उसको बाइनरी ऑपोजिशन में या किस तरह के पैटर्न में रखें। बट अल्टीमेटली हम कुछ भी क्रिएट करें, द डिजाइन जो है हमारा, फर्स्ट इट इज लिमिटेड एंड देन क्यूड अप बाय द नेचर। जो भी हम बनाते हैं, जितने भी हमारे डिजाइन हैं, लाइक आप ऑटोमोबाइल देख लीजिए या फिर कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जितनी मैन मेड स्ट्रक्चर है, सो भले ही वो इमेजिनेशन है, बट हमारी इमेजिनेशन जो है वो भी तो लिमिटेड है। हम कोई ऐसी चीज अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। सो यही बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो यूनिवर्सल है। फिर द फाइनल ब्यूटीफुल एनालिसिस केम अप बाय स्ट्रॉस, वो ये था that if the world exists in those binaries, जैसे life and death, और उसके बीच का जो स्पेस है, बीच की जो दूरी है, बीच की जो जर्नी है, it has to be traversed by us. So that journey, in order to make it meaningful, we create a symbolic world. सो ये सिंबॉलिक वर्ल्ड जो है, इट नॉट ओनली मेक्स द जर्नी ब्यूटिफुल, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ पावरफुल नॉलेज ट्रांसमिशन टूल। कैसे? नाउ आप इस चीज को ध्यान से देखें कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितने भी बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, लाइक लाइफ एंड डेथ की जगह आप डे एंड नाइट ले सकते हैं। तो डे ब्रेक एंड द फॉल ऑफ द नाइट, उसके बीच की जो दूरी है, यही तो हम पार करते हैं। जब रात हो जाती तो सोना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी लिमिटेशन है। फिर यही जो बाइनरी ऑपोजिशन जो है, ये
वर्ल्ड में हर एक जगह पे है। इवन सीजन का भी आपको अभी बताया कि जैसे विंटर्स के अंदर आप ओपन रूफ रेन डांस जो है ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते, वो फुलिश भी है और डिजास्टर भी है। सो जो हमारी लिमिट है, सो उसी के अंदर हमें काम करना है। सो अल्टीमेटली ये जो लिमिट में जो गैप है, बीच वाला गैप, लाइफ एंड डेथ के बीच में, डे एंड नाइट के बीच में, और इस तरह के बाकी सारे जितने भी ऑपोजिशंस हैं उनके बीच में, सो दैट जर्नी हैज टू बी ट्रेवल्ड बाय अस। नाउ वो जर्नी कैसे ट्रेवल करें, उसके लिए एक सिंबॉलिक वर्ल्ड क्रिएट किया है। Because symbols or metaphors, they have a powerful way of teaching us. Now यही आप simply कह सकते हैं, but first life is quite dynamic, quite uncertain, quite you know is quite uncertain, dynamic and unpredictable. और ऐसे में हम कोई भी जर्नल क्रिएट करें, कोई भी ऐसी रिटर्न सेल्फ हेल्प बुक क्रिएट करें, हम लाइफ का सारा डायनामिक जो है या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसका एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, या डू इट योरसेल्फ गाइड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली क्या है, वी क्रिएट अ सिंबॉलिक वर्ल्ड ऑफ मेटाफर्स, और वो मेटाफर्स जो है दे आर अ पावरफुल नॉलेज ट्रांसमिशन टूल। सो जैसे ये एक चीज है, सबको पता है कि लाइफ बिकम्स टफ समटाइम, और ये सबकी जिंदगी में आता है। अब यहाँ पे वो पूरा लिस्ट आउट तो नहीं कर सकते कि कैसे कैसे टफ होगी, क्या क्या होगा, किस सेकंड, किस वक्त, किस दरमियान, किस किस तरह से चीजें खराब होंगी, कितनी बुरी जा सकती है, कितनी अच्छी जा सकती है। सो वो चीज जो है इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल। सो होता क्या है कि अगर हम कहें कि लाइफ विल बी टफ, ये फेज सबका आएगा, बट यू होल्ड ऑन, देन लाइफ will be brighter. You will come out as wise, strong and पावरफुल। जितने भी आपके जो ड्रीम्स वगैरह है वो भी रियलाइज हो जाएंगे। जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यही चीज है। अभी स्ट्रगल का टाइम है, सो स्ट्रगल जितना घिस सको घिस लो, उसके बाद जो है द फ्यूचर इज ब्राइट। ये होता ही, सो यही ये जो है उसी मेटाफर या सिंबॉलिक वर्ल्ड की बात हो रही है जो यहाँ पे वो एनालिसिस किया है। सो फर्स्ट he look at the Amazonian mythologies. So उसमें ये आइडिया जो आया है कि जो कॉन्ट्रास्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन नेचर एंड कल्चर। नेचर जो है ऑलरेडी वहां पे है, जो पैटर्न्स जो है, एंड कल्चर जो हमने क्रिएट किया है टू सर्वाइव थ्रू दिस टाइम। सो ये जो जर्नी है, इसमें we organize the language, we create the symbolic world, and then we transmit this knowledge to the upcoming generation. Now let's have a look at the core ideas of Claude Lévi-Strauss. So first, the mind as a structuring agent. So he had this fundamental belief that the human brain everywhere experience these opposites, like hot and cold, dark, light and dark, raw and cooked, male, female, nature, culture, day and night. So ये जो binary thinking है, it is universal and unconscious because we are part of the same nature. It's not that कि nature जो है, it is teaching us by borrowing us or immigrating us from another universe or another galaxy. ऐसा नहीं है कि वी आर द पैरासाइट्स और वी आर द एलियंस हियर। हम खुद नेचर के प्रोडक्ट हैं। नेचर ने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं बनाया। सो ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी हमारे अंदर है, एंड वी इनहेरिट दीज लेसन्स बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट नेचर एंड इट्स आवर हेरिटेज। सो यही जितने भी जो सिंबॉलिक वर्ल्ड के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, रिचुअल्स हो गए, मिथ्स हो गए, किनशिप रूल्स, टोटेमिक सिस्टम, फूड प्रैक्टिसेस, नॉलेज सिस्टम, बिलीफ, सुपरस्टिशन, जितने भी चीजें हैं जो कल्चर से जुड़ी हुई है, सो ये सारे के सारे जो है ये इसी बाइनरी ऑपोजिट को फॉलो करते हैं या उसी के अलाइंड है। जो
जो अल्टीमेट आइडिया जो है, द अलाइनमेंट ऑफ our belief system, the alignment of our ritual, alignment of our existence. अगर और broader level पे देखें, deeper level पे, it is the alignment of our existence to the lessons of nature. जो अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम विंटर्स में ओपन रूफ रेन डांस ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते, ठीक है, वो एक वन ऑफ इवेंट है ना। कुछ एडवेंचरस स्पिरिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं, बट देन यू कैन नॉट लिव दैट वे थ्रू आउट द विंटर टाइम। आप पूरे विंटर में वो 3-4 महीने आप समर की तरह नहीं रह सकते, समर क्लोथ्स में आप वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू मस्ट अलाइन योर एग्जिस्टेंस विद दीज नेचुरल लेसन्स। सो यही आइडिया यहाँ पे है कि जितने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कल्चरल अपेंडेजेस हैं, ऑल ऑफ देम दे ओ देयर एग्जिस्टेंस बिकॉज वी अलाइन आवर एग्जिस्टेंस, वी अलाइन आवर सर्वाइवल टू दोज नेचुरल लेसन्स। फिर जो सेकंड आइडिया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप। इससे पहले जो है द बाइनरी ऑपोजिशन थिंग और टू नो दीज ऑपोजिट पैटर्न्स, वो चीज जो थी वो होमोसेपियंस के लिए एक तरह से पैसिव चीज है, दैट वी आर द रिसीविंग एंड। नेचर जो है वो हमें डे एंड नाइट दिखा रहा है और हम जो है वी हैव अलाइन आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस टू दोज नॉर्मल्स, टू दोज पैटर्न्स, ठीक है। बट वहां पे हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं है, पैसिव रोल है। आपने दिखाया, डे एंड नाइट दिखाया, लाइफ एंड डेथ दिखाई, एंड वी एक्सेप्ट इट बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय इट। बट हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो कल्चर है, इट इज नॉट जस्ट दैट पैसिव लर्निंग वन। हमारे कल्चर प्रोग्रेशन में स्पेशली जो अब हम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कल्चर देख रहे हैं, द एआई, मेटा, वर्चुअल रियलिटी, द स्पेस एक्सप्लोरेशन, द टॉक्स ऑफ creating a society on moon, the deep sea exploration, फिर हम जो है फ्रॉम कॉस्मिक लेवल या फिर कह सकते हैं फ्रॉम माइक्रोकॉस्म टू द कॉस्मिक लेवल, हम उसके बीच की जो जर्नी है, हर एक स्पेस में, हर एक लेवल पे वी आर क्रिएटिंग ब्रेक थ्रूज, वी आर ब्रीचिंग आवर बाउंड्रीज। सो अब जो कल्चर ग्रोथ है इट इज एक्सपोनेंशियल, और ये सब कल्चरल ग्रोथ जो है ये पैसिव नहीं हो सकती, इट हैज टू बी एक्टिव। और यहाँ पे वो चीज जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप है, इन विच लेवी स्ट्रॉस गेव द अलायंस थियरी। सो इसमें ही सेड कि वी नॉट जस्ट learn those lessons passively, we actively use those lessons to proceed ahead in life। एक है ना, बहुत सिंपल तरीके से कहा है कि हमने कोई चीज सीखी है, उसी चीज को हम अपने लिए इस्तेमाल करके, अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी यूज दोज पैटर्न्स। सो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस इन द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ही सेड कि जो सोसाइटी जो है, जितने भी कल्चर्स हैं, दे एग्जिस्ट इन दैट सिंबॉलिक वर्ल्ड, जो भी आपको बताया कि वो जर्नी कैसे ट्रेवर्स होती है। नाउ सिंबॉलिक वर्ल्ड का तो समझ में आ गया। नाउ द जो एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हाउ वी यूज, हाउ वी एम्प्लॉय दोज लेसन्स फॉर आवर बेटरमेंट, वो यहाँ पे अलायंस थियरी में है। दैट बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन इज देयर, ऑल राइट, गेट इट, बट देन that biological reproduction, it should not be a promiscuous mating type। मतलब biological reproduction होना चाहिए, it's the primal urge, got it, but then that primal urge need not to be chaotic, it must be brought into an order, okay, to to shy away from promiscuity, we organize that institution into an order one, so that institution is marriage, कि reproductive partner चाहिए, mating चाहिए, then marriage is the thing। इस marriage के जितने भी cultural practices हैं उनको follow करो, and then you get the chance to mate and procreate, all right, the authority, the social permission to procreate has been given, all right, but then
ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये ऑर्डर जो है, ये यहीं तक ही क्यों लिमिटेड रहे? मतलब यही इंस्टीट्यूशन या यही बेसिक प्राइमल अर्थ जो है, इट कैन बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अलायंसेस, टू स्ट्रेंथन सोसाइटी। ना, यहां पे वो एक्टिव पार्ट आ रहा है कि प्राइमल अर्ज है, ये एक लेसन है नेचर का कि वी कैन नॉट स्टॉप इट। फिर अगर उसको नहीं करेंगे देन प्रोमिस्क्विटी विल बी देयर, प्रोमिस्क्विटी नहीं तो कंसैंग्विनिटी विल बी देयर। अगर जो है जितने भी होमोसेपियंस है, इफ दे आर नॉट गिवन द चांस टू मेट एट द प्रॉपर एज, सो दो चीजें होंगी, या तो प्रोमिस्क्विटी होंगी या कंसैंग्विनिटी होगी, और दोनों ही जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट, पहली वाली चीज से क्योस एंड रूइन, एंड सेकंड वाली चीज से इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए एक वे आउट, एक कॉम्प्रोमाइज निकालने के लिए आवर एंसेस्टर फाउंड अ ब्रेक थ्रू। और उस ब्रेक थ्रू या ब्रेक अवे कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं। सो उस रास्ते में इसी चीज को, इसी प्राइमल अर्ज को they use in building alliances to strengthen the society, to to strengthen the society in a way that it survives, the culture is transmitted, and our lineage survive any possible catastrophe. So that's what this alliance theory is. So biological reproduction is constructed into transformed into a social contract, और उसी के साथ जैसे ही एक आदमी शादी करता है, दोनों परिवार के बीच में एक लास्टिंग बॉन्ड बनता है। फैमिलीज, क्लान्स, ट्राइब्स, सोसाइटी जो है उनके बीच में जो जो सिस्टम्स जो है उनके बीच में जो म्यूचुअल रेस्पिरेशन है वो बढ़ता है। नाउ अगर इस चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, समझ लीजिए कि मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं है, और ये आइडिया समझने के लिए आज का जितना भी आपके दिमाग में है, आजकल की जो देखते हैं, शादी वगैरह देखते हैं, या प्रेजेंट जो भी कुछ हो रहा है, उस सबको भूल के एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं, स्टोन एज के आसपास जाते हैं। सो स्टोन एज में जब ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सोसाइटी जो है वो भी बहुत ही कम लेवल पे थी, है ना, ऑर्गेनाइज नहीं थी, और इवन कह सकते हैं सेटलमेंट ही नहीं था, जो एग्जिस्टेंस था वो नोमैडिक था। सो उस जगह पे जाके उन लोगों की तरह अब सोच के देखिए कि अब हम ही वो लोग हैं, हम ही वो एंसेस्टर्स हैं, और अब हमें अपनी जो सोसाइटी है, जो भी हमारा ग्रुप है 30-40 लोगों का, जो नोमैडिक एग्जिस्टेंस या हंटिंग गैदरिंग पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड नाउ हमें अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। सो उसके लिए यही है कि जो ये अर्ज है, द अर्ज ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, इट कैन बी यूज इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि फर्स्ट, ये एक सच तो है ही है, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। सो इससे अच्छा है कि इसको एक इंस्टीट्यूशन में बदल के इसी चीज से हम अपने जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से बनाए जाएं कि जो अल्टीमेट मोटिव है, सर्वाइवल, वो इंश्योर हो सके। फिर लेवी स्ट्रॉस अंडरटुक केस स्टडी अंडर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल। सो यहाँ पे इस सोसाइटी में he found out that a man is expected to marry his mother's brother's daughter. So मामा की बेटी, जो हम जो कहेंगे, which is cross cousin marriage. So यहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर ये एक रूल था। सो अब ये जो है, इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेंज कस्टम, बट इसके भी सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। फर्स्ट, जो डिफरेंट क्लान्स जो है उनके बीच में रेसिप्रोसिटी, द लास्टिंग बॉन्ड कैन बी established. देन सेकेंड, इट ensures सर्कुलेशन ऑफ वीमेन, क्योंकि अगेन हम जो है एक बहुत ही प्रिमिटिव एग्जिस्टेंस की बात करें, ट्राइबल एग्जिस्टेंस की। सो वहां पे women need to be circulated, and then this this power, it can be leveraged not as a power move, but to build alliances, to strengthen society, and then this maintains social equilibrium, क्योंकि again it is form of a gift कि if you
get something. If you are given something, then you will receive something. So this give and take thing जो है, it mean again it build lasting bond. So यहाँ पे ये एक सिंपल सा कस्टम है. यू कैन सी कि इसमें कितने सारे लॉजिक्स हैं, कितने सारे these symbolic acts are there. और यही छोटे छोटे symbolic acts जो हैं, they maintain the survival, the existence of society. फिर एक और आगे देखते हैं, जो प्रेफरेंशियल मैरिजेज हैं, जैसे हमारे अंदर भी हम देखते हैं. मैं यहाँ पे दो एग्जांपल, कास्ट एंडोगेमी, देन गोत्रा एक्सोगेमी, फिर उसके बाद ट्राइब एंडोगेमी, एंड देन क्लान एक्सोगेमी. अब ये दो एग्जांपल है मेरे पास. फर्स्ट ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए, ये ट्राइबल सोसाइटी के लिए. नाउ ये जो दोनों हैं, ये प्रेफरेंशियल मैरिज टाइप है, द प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेट्स. सो यहाँ पे ये होता है कि कास्ट जो है, फर्स्ट इट वांट्स टू मेंटेन इट्स सॉलिडारिटी, to ensure its survival, to ensure that it is agile, flexible, and strong enough to survive the travesty of time. All right. So यहाँ पे ये चाहती है कि जो रिसोर्सेस जो हैं वो उसी के अंदर रहें, जो ब्लड जो है, जीन्स जो है वो कास्ट के अंदर ही रहें. क्योंकि अगर कास्ट एंडोगेमी नहीं रहेगी, मीन्स इफ इट इज रैंडम मेटिंग, सो क्या होगा, जो जो चीजें जो हैं जिससे सर्वाइवल इंश्योर होता है, बिकॉज अल्टीमेटली बार बार आप ये चीज देख रहे हैं, सर्वाइवल. तो सर्वाइवल वेदर एट द इंडिविजुअल लेवल और द सोसाइटी लेवल, you know, it is the deepest purpose that can be found in all life forms. यही तो चीज है, the most powerful impulse. हम सब सर्वाइव, अपना सर्वाइवल चाहते हैं, चाहे अपना चाहे अपने बच्चों का, बट हम वो चीज चाहते हैं. सो ये सर्वाइवल हर एक जगह है, यही हर सोसाइटी का डीप स्ट्रक्चरल लॉजिक है. सो आज जितने भी कस्टम्स हमें दिखते हैं, सो हो सकता है कि वो कस्टम जो है हमें अजीब लगे, बट सबका जो स्ट्रक्चरल लॉजिक जो है वो यही है. फिर प्रेफरेंशियल मैरिजेस का जो है उसका भी यही है कि अगर कास्ट से बाहर शादी करते हैं तो यह है कि जो रिसोर्सेज जो हैं वो किसी और के पास जाएंगे. नाउ इफ रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद समवन एल्स, सो आपकी जो ब्लड लीनिएज जो है या आपकी जो फैमिली जो है वो उनका सर्वाइवल इंश्योर नहीं होगा, रिसोर्सेज किसी और के पास जाएंगे. सो यही वो चीज है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है इट इज वन ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड is one of activity, but then to ensure the survival of child, it is a lifetime affair, a lifelong affair. So उसके लिए you need the financial, the resources in your hand. So ये कास्ट एंडोगेमी जो है, इसी का ये सेम डीप लॉजिक है. फिर गोत्रा एक्सोगेमी जो है, इसके लिए वो दूसरा रास्ता है, दूसरा आइडिया है, दैट्स टू अवॉइड कंसैंग्विनिटी. नाउ यही आइडिया जो है सेम रिसोर्सेज का टू इंश्योर सर्वाइवल, यही जो इजिप्शियन रॉयल्स जो हैं, यूरोपियन रॉयल्स जो हैं, उन्होंने भी यही आइडिया है कि उनकी जो लीनिएज जो है वो प्योर रहे, ब्लड, रॉयल ब्लड जो है वो रॉयल्टी के अंदर ही रहे. बट ये है कि जब कंसैंग्विनिटी होती है तो जो रिसेसिव एलील जो है, जेनेटिक लोड जो है वो बढ़ता जाता है, एंड देन रिसेसिव्स आर नॉट फेवर्ड बाय लाइफ. Evolution does not favor them, and ultimately if recessives accumulate in greater number, तो पहले तो जो इवन फीटस जो होता है वही सर्वाइव नहीं करेंगे, फर्टिलिटी अपने आप डाउन हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए गोत्रा एक्सोगेमी, जो गोत्रा जो है यानी जो इमीडिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्लड रिलेटिव्स जो हैं उनको स्किप करके फिर उससे बाहर शादी करते हैं. सो दैट्स उस अवॉइड करने के लिए ये एक आइडिया है. सिमिलरली ट्राइब एंडोगेमी एंड क्लान एक्सोगेमी, इन दोनों के अंदर ही सेम लॉजिक है कि ट्राइब एंडोगेमी में रिसोर्सेज, पावर,
जो स्टेबिलिटी वो जो है वो सिर्फ सोसाइटी के पर्टिकुलर उस ट्राइब के पास रहे, एंड देन क्लान एक्सोगेमी कि अपने क्लान से बाहर कंसैंग्विनिटी को अवॉइड करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये सारे लॉजिक्स देख सकते हैं इनमें। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ his third tenet is it talks about the structural formation of human mind, structural logic of human mind. So in his famous series Mythology, so here he talk about those myths, कि the myths are the window to the deepest structure of human thoughts. So यहाँ पे he again talk about the basic opposition कि जो myths जो है, myth are the symbolic gateways, the symbolic breakthroughs, the symbolic bridges that resolve all those basic opposition in human life. So जैसे जितने भी contradictions जो हैं हम देखते हैं, ये आइडिया मैंने आपको पहले भी समझाया था, that life and death, these are two ultimate truth, and the journey in between, the bridge, it is filled up with this symbolic world. और उस symbolic world में सब कुछ है। उस symbolic world में cultural practices हैं, superstition है, belief system है, knowledge है, folklores हैं, and myths भी हैं। So myth भी यहाँ पे उन्हीं contradiction के बीच में they try to bridge this gap or try to ease the journey. So अगेन अब सिंबॉलिक वर्ल्ड में ये है कि ये जो आइडिया जो दिया है डीपेस्ट स्ट्रक्चर का, इट इज क्वाइट प्रिमिटिव वन। द प्रिमिटिव वन मीन्स यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कही है कि जो जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन जो ह्यूमन देखते हैं, नेचर, कल्चर, ह्यूमन, एनिमल, लाइफ, डेथ, ऑर्डर, कियोस, ये जब भी फर्स्ट हमारे एंसेस्टर ने थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन अगो उन्होंने सबसे पहले जब ये चीज देखी, एंड देन दे वेंट थ्रू दिस दिस इल्यूजन, दिस कंफ्यूजन, दिस मेंटल स्ट्रगल, तो दे केम अप विद दिस सिंबॉलिज्म कि इस चीज से, इस टूल से tensions can be resolved or ultimately we can make sense of the things we are in. क्योंकि आज हम लोग जहां भी हैं, होमोसेपियंस जो इवन यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और इवन मैं योर टीचर, हम लोग को भी नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे होंगे। मीन्स वी दिस वॉज एन अनप्लान जर्नी। सो यही चीज जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी थी, उनके लिए भी जो दिस अराइवल टू दिस अर्थ was an unplanned event. उनको भी नहीं पता था, and then they, with time, they got this idea that in order to survive, we must learn the lessons, and then we must build the bridges. No one is there to do this for you. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई समझाने वाला नहीं है, you need to figure this out. So यहाँ पे जो symbolic world जो है, it is that bridge. But ये primitive है। फिर धीरे धीरे जो है यही सिंबॉलिक वर्ल्ड, इट वॉज लैच विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जब उनको पता चलने लग गया हमारे एंसेस्टर्स को कि दिस सिंबॉलिक वर्ल्ड इट कैन बी हेल्पफुल, इट कैन बी एम्प्लॉयड टू ईज द जर्नी, तो साथ में दे ऑल्सो लैच्ड दिस सिंबॉलिक वर्ल्ड विद अ लॉट ऑफ अदर एसोसिएटेड सेकेंडरी टूल्स, जैसे सुपरस्टिशन हो गया, वे कस्टम्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, द आइडिया ऑफ गॉड हो गया, द रिलीजियोसिटी हो गई। सो ये सब जो चीजें जो हैं, ये अल्टीमेटली देन they were given well buffed up form, well buffed up, complex, intricate, labyrinth like form to ensure the deepest logic of our survival, the deepest logic of our existence, which is to ease the journey, to survive and to ensure survival of a loved one. तो ये एक बहुत ही बेसिक लॉजिक है। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं समझ पाते कि why do people behave in this way, why is their purchasing behavior is quite erratic, why can we find those universal purchasing patterns in the economic behavior of the society throughout the world. क्योंकि वो एक डीपेस्ट लॉजिक नहीं समझ पाते, that it is
about the survival of ourselves and our loved one. खैर, फिर एक केस स्टडी की बात करते हैं. सो his work on Amazonian myths, he contrasted raw and cooked food. So यहाँ पे ये जो symbolic word है raw and cooked, they signify two poles of the spectrum of life. Raw food जो है, it is nature, chaos and wildness, disorder. इसमें disorder भी डाल देते हैं. And cooked food, it is control, civilization and order. फिर एक myth है, like man stealing fire from gods to cook his own food. So ये जो myth जो है, ये जो folklore जो है, ये बहुत सारे culture में similarly ये मिलती है और इसके बहुत ही ancient origin है. फिर ये भी है कि ये जो folklore या ये जो parable है, ये हर एक सोसाइटी में मिल रही है. उन सोसाइटी में भी है जहाँ पे आपस में कांटेक्ट नहीं है. सो ये अल्टीमेटली उसी जो यूनिवर्सल कॉग्निटिव पैटर्न जो है उसको सिग्निफाई करती है कि चाहे किसी भी कल्चर का वो हो, किसी भी ज्योग्राफी का हो, किसी भी लाइफ प्रैक्टिस का हो, द अल्टीमेट जो पैटर्न्स जो हैं, जो डीपेस्ट जो पैटर्न्स जो हैं वो सिमिलर है. फिर ये स्टोरी जो है इट सिंबलाइजेस समथिंग कि किस तरह से मैन मूव फ्रॉम डिसऑर्डर टू ऑर्डर, फ्रॉम नेचर टू सिविलाइजेशन. फिर यस यहाँ पे एक और चीज, देन मिथ्स के बारे में एक और चीज कही कि जैसे म्यूजिक के अंदर होते हैं पैटर्न्स, थीम्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, रिदम्स होती है, वैसे ही और आज आप लोग समझ रहे हैं कि हर एक चीज के अंदर वही रिदम होती है. जिसको रिदम समझ में आ जाती है वो उसका मास्टर बन जाता है. ये आप स्टडीज की बात करें, आपके गेम्स की, स्पोर्ट्स की, आर्ट की, किसी की भी बात करें. सो ये जो रिकरिंग थीम्स हैं, ये जो रिदम्स जो हैं, यही रिदम मिथ्स की भी है. सो यहाँ पे मिथ जो है दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ माई थीम्स. अब माई थीम का एक आइडिया देता हूं मैं आपको. सो किसी भी लैंग्वेज के अंदर बेसिक यूनिट्स होती है ना, उसमें 3 चीजें. कोई भी एक वर्ड हो गया, जैसे वर्ड की ही बात करें. अब इस वर्ड का एक रिटन फॉर्म है. सो दिस इज हाउ वर्ड इज रिटन. फिर उसका एक स्पोकन फॉर्म है. इसको ब्रिटिश क्वींस इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, इस पर्टिकुलर नोटेशन में वर्ड. और ये है इसका नोटेशन. और एक सिंपल यूनिट जो होती है, द बेसिक यूनिट, ये फोनीम. फिर यही चीज अगर मिथ्स की बात करें तो मिथ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दीज आर माई थीम्स. फिर इसी में एक और चीज, वर्ड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इट इज लेटर, W. वैसे ही इसी के अंदर भी जो सबसे छोटा साउंड है, फोनीम. और माई थीम्स के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है, विच क्रॉस अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन, वो माई थीम्स होती है. फिर आपको ये सुन के ना बड़ा अजीब लगेगा कि यही माई थीम्स जो है वही यूनिवर्सल पैटर्न्स है. जैसे जब भी आप किसी बात करें, किसी स्पिरिचुअल गुरु से बात करें या किसी सक्सेसफुल पर्सन से बात करें, सो जो एक छोटे बच्चे के लिए, 3-4 साल के बच्चे के लिए अगर वो सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये किसी कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. उनके लिए यही जो बड़े बड़े जो हैवीली चार्ज वर्ड्स हैं, लाइक लाइफ हो गया, सक्सेस हो गया, है ना, टफ टाइम्स हो गया, स्ट्रगल हो गया, हार्ड वर्क हो गया, ये आपको ये डिक्शनरी जो है, ये वोकेबलरी, ये बार बार रिपीट होती दिखेगी. और यही चीजें जो है, ये आप जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाते हैं तो आप ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर जितने भी स्पीकर्स हैं, उन सब के अंदर ये चीजें जो है उनके
भाषण में 2-3 बार तो ये चीजें आ ही जाएगी, लाइफ, सक्सेस, स्ट्रगल और ऐसी सब चीजें। सो ये आज के टाइम में ये वो माई थीम्स हैं, तो बेसिक यूनिट जो बार बार रिपीट होती है। सो एक तरह से ये वो बेसिक पैटर्न्स हैं जो हर जगह रिफ्लेक्ट होते हैं। नाउ इट्स नॉट कि जो सिर्फ इंडियन जो लेजिस्लेटर्स जो है वही लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाइजीरियन, कोरियन, अलास्कन या ब्राजीलियन, अर्जेंटीनियन वो सब नहीं कर रहे हैं, तो हर जगह पे यही है। तो यही आइडिया जो है वो लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि जो यूनिवर्सल जो माइथोलॉजी है, it follow those certain patterns, certain mythical heroes or certain themes of basic themes of myths. Anyway, let's proceed on to the summary of core ideas. First, binary opposition, which is human mind thinks in opposite or human mind get the lessons in opposites. और फिर the second concept, kinship as a structure. So यहाँ पे kinship is the active phase of learning life lessons, कि जिसमें जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है वो सब दे कैन बी एम्प्लॉयड टू स्ट्रेंथन द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जैसे एक अलायंस थियरी है। फिर नेक्स्ट मिथ्स। सो मिथ्स ब्रिजेस दोज गैप। यहाँ पे मिथ्स जो है दिस दे symbolizes the symbolic world। उस पूरे symbolic world की बात कर रहे हैं जिसमें सब कुछ आता है, myth, folklores, parables, ये सब। फिर my theme is the smallest unit of myth structure, जैसे जो जो myth हर जगह होती है, the man, the metamorphosis of a man from animal, human into animal। फिर रेज है। और यहाँ पे एक और चीज भूल गया, जो अभी जो साउथ इंडियन मूवीज का जो आप देख रहे हैं वो काफी चलन चल रहा है, जैसे पुष्पा हो गया, रॉकी वाला हो गया, केजीएफ, ठीक है, और जितनी भी ये फिल्में आ रही है। सो उन सब में आपने ये साउथ इंडियन सिनेमा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वही एक ही थीम जो है, द यूनिवर्सल पैटर्न जो है वो उसी में देखते हैं, द बाइनरी ऑपोजिट। इट्स अ हीरो वर्सेस विलेन। फिर जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस, है ना। फिर दिस रामा वर्सेस रावणा, ये वाली जो थीम है। और पेन वर्सेस रिवॉर्ड। फिर सक्सेस वर्सेस फेलियर। सो ये सब चीजें जो है आप देखेंगे वो उन्हीं के अंदर वो एक सेम की सेम चीज जो है वो आ रही है। हम वो समझ में नहीं आ रहा वो चीज को कैसे रिप्रेजेंट करे, बट आप साउथ इंडियन फिर जब मूवीज देखेंगे तो आपको समझ में आया कि वो उसी एक सिंपल लॉजिक पे, एक सिंपल पैटर्न पे रिवॉल्व होती रहती है, that hero versus villain pattern. Fair, let's move on to Edmund Leach, which provided structuralism with flexibility. Now, the structuralism given by Edmund Leach, तो core ideas जो है वो तो similar है to Claude Lévi-Strauss, but then he rejected one thing, that these structures are static or fixed. So according to Edmund Leach, all those structure, all those opposite patterns, all those universal cognitive patterns, they are not fixed, but they are fluid. They change across time. और वही आइडिया जो है ये कह सकते हैं कि जैसे आज के बात करते हैं कि अगर आपको यही पैटर्न जो है प्रेजेंट सोसाइटी में देखना है तो सोशल मीडिया पे आप देखते रहिए कौन से वर्ड जो है, कौन से ये माई थीम्स जो है, या सिंपली कौन सी वोकैबलरी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। वही पैटर्न है, वही उस वक्त का, उस पर्टिकुलर टाइम का, है ना, बेसिक पैटर्न है। और ऐसा नहीं है कि जो हम आज बात कर रहे हैं वो वही हमारे एंसेस्टर्स भी बात कर रहे थे। सो वक्त के अकॉर्डिंग यही पैटर्न जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो यही आइडिया एडमंड लीच ने भी दिया कि यही स्ट्रक्चर्स जो हैं, दीज ऑपोजिट पैटर्न्स, these universal patterns, they change with time. The rituals are particularly charged, and then they transform across different timelines. फिर first idea,
he talk about the political system and ritual. So यहाँ पे उसका idea है कि किस तरह से he said कि these universal structures are not static. So he undertook a study in Burma, in present day in Myanmar. So he studied the Kachin and Shan community of Highland Burma, और उसकी एक famous book भी है Political Systems of Highland Burma. So यहाँ पे he observed that कि जो Kachin society जो है it does not maintain a fixed structure, जिस तरह से इसके पहले वाले anthropological theories ने कहा था. So he found out that the Kachin society, it oscillates between two major forms. The first, egalitarian Gumsa system, and the second one, hierarchical Gumlao system. Now, इस चीज को समझने के लिए आप जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस का तो आइडिया है ही है, जो सिंपल बेसिक पॉलिटी. सो आपको ये पता है ये चीज कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है एंड देन यूनिटरी बायस भी है. नाउ फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड. सो पावर जो है वो दो चीजों में शेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्स, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इस तरह से है, इस तरह से. सो वर्टिकली यूनियन लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल, एंड यही हॉरिजॉन्टली बात करें सो अमंग लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. सिमिलरली ये इस तरह से पावर शेयर होती है. एंड साथ में ये तो जो फिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है अदर, जैसे सिविल सोसाइटी है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सब के साथ भी पावर जो है वो शेयर होती है. एटलीस्ट दे इन्फ्लुएंस द पावर स्ट्रक्चर. फिर यूनिटरी बायस कि जब भी युद्ध जैसे हालात हो या कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या इवन अ सीरियस इंटरनल रिबेलियन भी हो, देन द पावर कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ the president. He or she can declare emergency, the national emergency, और ऐसा हमारे साथ हुआ है एक बार. सो वो उस नेशनल इमरजेंसी में ये जो फेडरलिज्म है, it is stopped for a while and all power is concentrated in one hand so that order and hierarchy can be established because the time needs that. अदरवाइज जब वो खतरा टल जाएगा फिर उसके बाद फिर से फेडरलिज्म आ जाएगा. सो यही जो फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी बायस है, वही है द स्विच, द ऑसिलेशन बिटवीन द गुम्सा सिस्टम एंड गुमलाओ सिस्टम. सो व्हेन द टाइम्स आर गुड, देन गुम्सा सिस्टम इज यूज्ड, व्हिच इज हाउ द कचिन सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड. ये दोनों एक ही सोसाइटी है. It's just the spectrum in which they oscillate. जैसे हम जो फेडरलिज्म यूनिटी की बात करें तो यहाँ भी वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. सो जब टाइम ठीक है तब पावर इज डिसेंट्रलाइज, सिस्टम इज इगलिटेरियन और इक्वल, एंड पीपल आर गवर्न बाय कंसेंसस. फिर जब वॉर हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, देन the power is centralized, ranked, and it resembles feudal kingdoms. So ये दोनों जो oscillation है जो इनमें दिखे हैं. So यहाँ पे देख सकते हैं जब external pressures होते हैं, war, migration और trade, या internal, external या internal, जिस भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो सोसाइटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग स्विच करती रहती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से these structures, they are not stable, not static, not fixed, but fluid. Then he talked about the rituals as the instrument of change. The rituals are not just the symbolic bridges to traverse the journey between the binary opposites, and nor were they the deep reaction to the logic of survival, but the rituals, they are used by people to gain a reward or some benefit for them. Like ये जो चीज है ये वही है जो अभी गुमसा एंड गुमलाव में आपको बताई थी. दैट अल्टीमेटली रिचुअल जो है
when our survival is at stake, ये आप खुद समझ सकते हैं, even present time में भी, if survival is at stake, then people will not worry about their power, will not worry about their throne, will not worry about their kursi, will not worry about their finances. They will try to survive at all cost. यानी वक्त बुरा हो तो सिर्फ वो जिंदा रहने की कोशिश करेंगे, जब वक्त ठीक हो जाए देन वो फिर देन अपनी कुर्सी के बारे में, पावर के बारे में, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में, उन सब के बारे में सोचेंगे. सो यहाँ भी वही द स्विच बिटवीन गुमसा एंड गुमलाओ सिस्टम, कि जब रिचुअल्स जो है व्हेन द टाइम स्टफ, देन वो जो सिंबॉलिक, जो उनका बेसिक जो है आइडिया, सिंबॉलिक वर्ल्ड है, एंड फिर उसमें जो डीप स्ट्रक्चर लॉजिक है उसके लिए वो रिचुअल्स ज़रूरी है. सिमिलरली ये अभी आपको बताया कि जो जो रिप्रोडक्शन की जो बेसिक अर्ज है, द प्राइमीवल अर्ज, प्राइमल या प्राइमीवल, सो अब वो अर्ज तो है ही है. अब उसी अर्ज को, दिस अर्ज कैन बी चैनलाइज इनटू दिस अलायंस थियरी, इनटू ensuring the social stability. So यहाँ पे इट्स लाइक उसी चीज का एक जो बेसिक ट्रुथ है उसका किसी और जगह इस्तेमाल किया गया. सिमिलरली यहीं पे वो रिचुअल्स जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो रिचुअल्स तो वैसे ही परफॉर्म करने हैं. नाउ अब उन्हीं रिचुअल्स को जो है लोग अपने, जब टाइम सही है, जब ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है, देन वही रिचुअल जो है वो लोग जो है यूज कर रहे हैं फॉर सम पॉजिटिव गेन्स, फॉर सम बेनिफिट्स. सो जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, टू गेन पावर, टू अक्वायर पावर, टू कंटेस्ट हायरार्की वगैरह वगैरह, इन सब के लिए डिफरेंट रिचुअल्स जो है वो यूज कर रहे हैं. यही जो है, आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यूपीएससी के स्टूडेंट, सो आप लोगों को भी पता है कि किस तरह से जो जो रूलर्स हैं, फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता, है ना, गुप्ता रूलर्स हैं, फिर इवन साउथ इंडियन प्रिंसिपैलिटीज लाइक चालुक्य, चोर, चेला, पांड्या, ये सब, इन सब प्रिंसिपैलिटीज में you might have heard about many rulers who used those specific rituals to gain the acceptance by people. जैसे जो हिरण्यगर्भा है, जो हिरण्यगर्भा एक एक तरह से एक रिचुअल है जिसमें some rulers they claim the divine status, the status of belonging to upper caste, the divine status to rule. Similarly जो राजसूय यज्ञ है, इसमें भी यही सिमिलरली ये जो रिचुअल्स हैं वो यूज किए गए ताकि उनको एक डिवाइन स्टेटस एंड सोशल एक्सेप्टेंस मिल सके. सो यहाँ भी वही चीज़ है कि रिचुअल्स जो है वो फिक्स नहीं है, दे कैन बी यूज बाय पीपल स्ट्रेटजिकली टू गेन सम मॉनेटरी, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स. फिर यहाँ पे मिथ्स को लेकर, मिथ्स एंड सिंबॉलिज्म को लेकर भी एडमंड लीच जो है, he travels a different line. So he said कि those myths are never fixed or universal. Instead, they depend on context, power, and historical change. Or, in other words, they change according to different time. So just say he talk about the myths in South Asia, Ramayana and Mahabharata. So इनमें आपको पता है कि the underlying opposition, so order versus chaos, obedience versus rebellion, purity versus pollution, and kinship versus individual will. खैर जो मैं आपको साउथ इंडियन सिनेमा की बाजू बात कर रहा था वो यहीं पे है ना. उस वक्त तो वो एकदम क्लिक हो नहीं रहा था, अब वो चीज़ आई कि साउथ इंडियन सिनेमा जो है ये उस इन्हीं अंडरलाइंग अपोजिशंस पे बनाते हैं मूवी. order versus chaos, purity versus pollution, justice versus injustice, obedience versus rebellion, ये सब. सो जैसे रामायण जो है ये भी उसी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो जो डीप स्ट्रक्चरल पैटर्न है, order versus disorder, या ड्यूटी, धर्म वर्सेस अधर्म,
यस, ये धर्म एंड अधर्म, धर्म अधर्म, यस, ये जो थीम जो है यहीं पे वो रिफ्लेक्ट होती है, एंड रामायण महाभारत के अंदर भी वही चीज जो है वो रिफ्लेक्ट, वो बार बार प्ले आउट हो रही है। बट देन ही केम अप विद दिस थिंग कि दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। एक जो सेंट्रल वर्जन जो है हम सब देखते हैं, उसके अलावा जो जो रीजनल वेरिएशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इवन साउथ इंडिया की भी बात करें, श्रीलंका की बात करें, सो वहां पे दीज बाइनरीज आर री इंटरप्रेटेड, दीज बाइनरीज आर चेंज, एंड समटाइम was रावणा इज पोर्ट्रेड एज अ नोबल फिगर। सो यहाँ पे जो रोल्स जो हैं वो ऑपोजिट्स हो जाते हैं। जैसे श्रीलंका की बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशिया की सोसाइटीज की बात करें, तो वहां पे यही जो आइडिया जो है ये इस तरह से हो जाता है कि रामा इज द विलन एंड रावणा इज द हीरो। सो ये एक ये जो री इंटरप्रिटेशन जो है, सो ये भी ये दिखाता है कि किस तरह से यही जो बाइनरी अपोजिट्स हैं या मिथ्स जो है, ये सिंबोलिज्म जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होते रहते हैं। फिर he looked at the the New Testament Bible. So Bible may be, he look at same, he found the same oppositions, the obedience, जैसे Adam before fall, and then the biting of forbidden fruit, and then they exile. So यहाँ पे ये दो चीजें, obedience and disobedience, when you obey then you are allowed to live in heavens, but if you disobey then you are exiled. फिर the purity versus sin, life versus death, so ये binary opposites जो है ये हर एक religion के अंदर है। but then meanings जो होती है, they change significantly, different ट्रेडिशंस हैं। जैसे अब ओल्ड टेस्टामेंट्स को कहें, या जो ज्यूइश ट्रेडिशंस की बात करें, या जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, ये तीनों जो है ऑलमोस्ट कह सकता है कि सिस्टर रिलीजन्स हैं। अब इन तीनों में अगर यही जो सेम आइडिया है, वो बेसिक थीम वही पे रिवॉल्व होती है, बट देन स्ट्रक्चर जो है या इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फिर सिमिलरली दिस दिस आर्क ऑफ नोवा, जो मैसिव फ्लड की जो है, ये एक थीम भी है जो बार बार रिपीट होती है, दैट a massive flood was coming by, and then God ordered his follower to build a big boat। ये जो स्टोरी जो है ये भी एक यूनिवर्सल मिथ जो है, ये जो कि बहुत सारी सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। फिर एक स्टोन सूप है, ये भी रिफ्लेक्ट होती है। फिर कह सकते हैं एक और चीज, द रैबिट एंड द टॉर्टोय, रैबिट एंड टॉर्टोइज, ये वाली चीज, ये वाली रेस जो है ये भी कॉमन है। फॉक्स वाली, कनिंग फॉक्स वाली, वो भी कॉमन है। खैर, नाउ द की डिफरेंसेस। सो स्ट्रक्चर के बारे में लेवी स्ट्रॉस ही सेड कि these structures, these patterns, they are deep about survival, about stability of society, they are universal, present everywhere, and they are timeless, means they are fixed. Whereas Edmund Leach, he agreed with those structure, with the existence of those structure, but that he said कि these are flexible, shifting, and historically contingent. Contingent means dependent upon context. With functions, फिर ये है कि myth, they resolve contradictions, they resolve they act as the bridge between all those binary opposites in all those poles of any particular spectrum. फिर Edmund Leach said कि these myths, they are tools for mobility, whether political, financial or social. फिर रिचुअल की बात करते हैं। सो यहाँ पे Levi Strauss said कि rituals are the symbols that are expressed to the chaos of that comes in mind, the expression of thoughts, whereas Edmund Leach said they are the strategic tools. फिर binary oppositions, so yes,
he said, Levi Strauss said कि binary oppositions जो है they are central universal everywhere, but यहाँ पे Edmund Leach said कि binary opposites are there but then they vary across generation. फिर केस स्टडीज जो है, तो फर्स्ट केस स्टडी जो है इट इज अबाउट टोटमिज्म. सो लेवी स्ट्रॉस इन हिज बुक टोटमिज्म ही studied the Australian Aboriginal Society and Native American, and he found out that कि जो भी टोटम्स होते हैं, जो भी एनिमल स्पीशीज वुड ट्री जो भी है, सो वो जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही नहीं है, बट दे हैव अनदर सिंबॉलिक मीनिंग. सो ये होता है जैसे one clan they may associate with the eagle and the another may with the crocodile. So अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो ट्राइब जो है they are talking about the physical prowess or the characteristic. It's not about prowess or characteristic or features of that particular animal or bird species or even water body or mountain जो भी totem animal है, but these totems they reflect those binary opposition कि उस binary opposition में वो society जो है वो कहाँ exist करती. So totems or totemism in particular, it helps in dividing society in a meaningful way. कि जैसे symbolism जो हमारा flag जो है, अब हमारा फ्लैग जो है वो उसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है. जैसे जो तिरंगे के तीन रंग है, तीन कलर्स हैं, उन सब के अपने अपने सिग्निफिकेंस है. सो यही सिमिलरली जो टॉटम्स जो है वो सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए है, और बाकी उनका जो मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर टॉटम एनिमल जो है वो क्यों लिया गया, सो वो डिपेंड करता है उनकी अपने खुद के जो इंटरनल बैलेंस के ऊपर कि वो उस स्पेक्ट्रम में, उस बाइनरी ऑपोजिट के स्पेक्ट्रम में वेयर दे लाई. फिर मिथ्स के बारे में, सो मिथ का तो अभी उससे बता दिया है कि जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डीप स्ट्रक्चर वो सिमिलर होते हैं. जैसे ये वाला द माइथिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैन इनटू जैगुआर. सो यहाँ पे दिस मेटामॉर्फोसिस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट जगल्स अप दिस सिंबॉलिक थिंग, अ सिंबॉलिक रेजोल्यूशन. और वो रेजोल्यूशन किसका है कि सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करती है दो चीजों, मैन सिविलाइजेशन, एनिमल it's a wilderness or nature. So you can say civilization versus nature. अब ये होता है कि if टाइम ऐसा आ जाए कि जिसकी वजह से आदमी को जानवर बनना पड़े, तो ये थीम जो है बहुत सारी फिल्मों में भी आप देखते हैं, बहुत सारे स्टोरीज में वो देखते हैं, जितने भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होते हैं, राइटिंग में हो गया, सिनेमैटिक हो गया, उन सब के अंदर आप ये चीज देखते हैं ना कि किस तरह से ये चीज बार बार होती है कि वक्त आने पे आदमी जानवर बन जाता है और सोसाइटी जो है वो जानवर को इंसान बनाने की कोशिश करती है, और इसी स्ट्रगल में, इसी कॉन्ट्रडिक्शन में वो जिंदगी चलती रहती है और फिल्म भी खत्म हो जाती है. सो यहाँ भी ये जो मैन इनटू जैगुआर है, मैन इनटू एनिमल जो है, ये उसी डीप कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर है कि ह्यूमन symbolizes civilization whereas animal civilization nature. और फिर ये होता है कि जब सोसाइटी उस फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाती है तब मैन टर्न्स इनटू एनिमल नेचर, मैन टर्न्स इनटू एनिमल. फिर यही है. फिर क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट यूनिवर्सलिटी के बारे में है क्रिटिसिज्म कि ही बिलीव्ड कि these binary opposites they are universal, but मैंने से कि ये यूनिवर्सल नहीं है. कुछ सोसाइटी जो है they do not follow this logic at all. They have their own diverse and fluid practices and they often do not think in this binary term. फिर the second criticism is about the neglect of history, that he talk about those universal things but
यस, जो डीपेस्ट पैटर्न्स जो भी मिले हैं उसको, मोस्टली दे आर अबाउट द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी, और about the stability of society. But he downplayed colonialism, capitalism, political change, या फिर कह सकते हैं जितने भी अलग अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी उस तरीके की है, वो सब फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए। फिर जो है यूरोसेंट्रिज्म एंड वेस्टर्न बायस, दैट्स द थर्ड criticism leveled on him. So it is said कि वहाँ पे वो जो यूरोपियन रैशनलिज्म जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो आइडियाज जो हैं वे आइदर दे आर सॉसूरियन और द फ्रेंच वन, क्योंकि यही है थे उसके, जैसे फर्डिनेंड द सॉसूर एक लिंग्विस्ट, स्विस लिंग्विस्ट, एंड देन एमिल दरखाइम अ फ्रेंच। सो ये कहते हैं कि जो भी आइडियाज जो हैं दे बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन वन, जो इंडिजिनस कॉस्मोलॉजीज जो हैं वो उनके बारे में ज़्यादा आइडिया दिया नहीं। एंड फाइनली ही ही इग्नोर्ड द ह्यूमन एजेंसी, कि इट इज़ बिलीव कि सारे के सारे लोग जो है, जो कल्चरल कोड जो हैं, जो बेसिक आइडियाज जो है, वही उन्हीं को पैसिवली एक्सेप्ट करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चर्स प्रैक्टिसेस जो है उनको एंसेस्टर्स के द्वारा मिली है या पास डाउन है, उन्हीं को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, ये आप और देख लीजिए, इट्स बीन अ लॉन्ग लेक्चर, और कुछ अगर हो जो आपको पूछना है, देन कमेंट एंड कम्युनिटी सेक्शन इज देयर। थैंक यू।